only carbohydrates. Carbohydrates. Now when we talk about the properties of glucose, now we are going to talk about one more particular reaction. Could anybody please tell me if this compound, could be anything, is reacted with CH3OH, what product do we expect? Maybe trace of H plus, or maybe just pure CH3OH. Make the product. What will be formed? What will be formed? This electron pair would tap over here. This bond would cleave. And this oxygen's electron pair would attack over this hydrogen. So the product that we are going to get would be COHOCH3. This compound is called hemiacetal. Now this compound is an ether along with an alcohol. On the same carbon we have OH as well as OCH3. अगर हम इसको फर्दर इसके साथ रिएक्ट करवा दें, in presence of concentrated H2SO4, now this will be able to release water from it. ये निकल जाएगा और ये निकलेगा तो we are going to get this compound would be called an acetal. ठीक है? Acetal can be easily hydrolyzed by acids. Now, let us talk a little bit further. Let's say we have an aldehyde or a ketone and we react it with CH2OH, CH2OH. Okay? This is called glycol. Now this glycol initially would react to give OH, O, CH2, CH2, OH. Treatment with concentrated H2SO4 would form CO. Now this will be a cyclic acetal. Is it clear? अब ये जो रिएक्शन है ये मैंने आपको बताया वो इसलिए कि if I talk about glucose,
In this compound, we have an aldehyde or a ketone here, and we have too many OH. अगर ये OH यहाँ अटैक कर जाए, तो it will be able to make a 6-membered cyclic ether. And we very well know 6 and 5-membered rings are stable. बीच में तो और भी वो है कुछ वर्मा जी पूरी बात सुनी, क्या सुना आपने पूरी बात? सर वही वाला अगर वहाँ पे अटैक अगर ये वाला यहाँ अटैक करे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? सर वो 6 मेंबर क्या बनेगा? दोबारा बोलना। 6 मेंबर्ड क्या बना आगे? 6 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, ठीक है? ओके। और इसके बाद भी एक बात मैंने बोली थी, 5 and 6 membered rings are stable. यहां से अटैक करेगा 5 मेंबर्ड, यहां से अटैक करेगा 6 मेंबर्ड, यहां से अटैक कर सकता है 4 मेंबर्ड, नहीं बनेगा। 3 मेंबर्ड नहीं बनेगा। 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रेन आ जाती है उनमें, स्ट्रेन रिंग है, क्यों बनेगा? जब 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड बन सकता है तो 3 और 4 मेंबर्ड क्यों बनेगा? सर स्ट्रेन में क्या मतलब हुआ? एंगल स्ट्रेन। एक काम कर, अपनी कोहनी को अपनी नाक पे लगा, कोहनी को अपनी नाक पे लगा, चल लगा लगा लगा, कैसा लगता है? कोहनी को यहाँ से नहीं लगेगी। अगर कोई जबरदस्ती तेरी कोहनी से तेरी नाक को टच करवा दे तो कैसा लगेगा? That's called strain. मतलब फिर ये पूरा मॉलिक्यूल सारे के सारे अपनी कोहनी से नाक लगा रहे। फोर्थ भी नहीं बनेगा, कुछ 3 और 4 दोनों ही होंगे। हाँ हो गया, आगे बोल। स्टेरिक हिंड्रेंस कौन सा बड़ा मॉलिक्यूल है यहाँ पे? तुम्हें क्या लगता है वो बीच में एसेट क्यों है? They are all pointing outside, outwards है। जब इसका स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा, जब ये मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ स्ट्राइक करेगा, तो the structure which is going to be formed, there are 2 possible structures, ठीक है? ये कार्बन chiral इस समय नहीं है, लेकिन the moment this is going to attack here, this carbon is going to become the chiral carbon. इसके पास चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे, and we are going to form 2 different possibilities. एक पॉसिबिलिटी बनेगी ये, एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी ये, और दूसरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी ये। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब वो फिशर में ना बने? बना रहा हूँ, वो भी बनाऊंगा, डोंट वरी। अभी नहीं ना, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा पॉइंट हो गया। नाक शब्द में 5 छूट गया। ये नाक शब्द में 5 छूट गया, तो इतना लंबा हो गया। तो इसीलिए तो नाक से आप अपना पाँव छू सकते हो, लेकिन आप नाक से अपनी कोहनी नहीं छू सकते। So sometimes the distance is important. That's what I'm saying. That's what I'm trying to say. That 6 and 5 membered rings are possible, 3 and 4 are not. तो लास्ट तक बनना चाहिए। कौन सा? यहाँ से 7 membered, फिर से स्ट्रेन हो जाएगी। Please understand. ठीक है? ज्यादा डिस्टेंस भी नुकसानदायक है, बहुत कम तो होगा ही नहीं। So now these are 2 structures possible. Now this structure is called alpha glucose. This is called beta glucose. Now what's the difference between the two? The difference between the two is that they differ in configuration at the carbon which became optically active or chiral once the ring was formed. इससे पहले कार्बन chiral नहीं था। यहाँ पे OH राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे OH लेफ्ट हैंड साइड पे। तो that is the difference between the two.
Is it okay? ठीक है? So this is what we call as alpha glucose, this is what we call as beta glucose. And somebody asked me how it would appear if we don't make the Fisher projection. Then आपने दोनों सेम ही तो बनाए हैं ऊपर भाई ओके yes, I have made the same except for this. वो सेकंड वाला बस इसी फर्स्ट वाला है, ठीक है? अगर मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन नहीं बनाता and I try to make cyclic, obviously these two are, ये पीछे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे निकल रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है. This is H OH. This is alpha glucose. And this is beta glucose. Now this way is called the Howard projections. नाम दिए हैं दो. तो क्या किस बेसिस नाम दिया मतलब डिफरेंशिएट किस बेसिस पे किया Just two forms of glucose are present. अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ग्लूकोज के दो फॉर्म्स पॉसिबल है, ठीक है? एक को बीटा दे दिया, एक को अल्फा दे दिया. और साइकिल की बात नहीं करते तो एक ही फॉर्म है, ये तो एक ही है. ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं। मैंने ये नहीं कहा ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. क्यों? एक बार को उसको भी ऐसे- अरे मेरे भाई, यहाँ पे इसने विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन हुआ है, या तो अल्फा बनाएगा या बीटा बनाएगा. दूसरा मॉलिक्यूल ग्लूकोज पहले उसके नहीं रिएक्ट करता, दूसरा मॉलिक्यूल वो तो पॉलीमर बन जाएगा. पॉलीमर ग्लूकोज तो मोनोमर है. मतलब कि अगर दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ेगा तो एक और एक ग्लूकोज मोलिक्यूल दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हो जाएंगे ना, वो तो डायमर हो जाएगा, वो तो डाइसैकराइड हो जाएगा. साइक्लिक स्ट्रक्चर थोड़ा बनेगा. तो मोनोमर क्या था मोनोमर ग्लूकोज है, फॉर्मूला पिछली क्लास में बताया था. तो यही आजाद डाइसैक्रिक क्यों बनेगा? डाइसाइक्लिक बाइसाइक्लिक कंपाउंड बना रहा है. नहीं, डायमर बन सकता है. डाइसाइक्लिक का बाइसाइक्लिक का क्या मतलब? इतनी बड़ी रिंग बनाने का ये वो ऐसा नहीं फ्यूज रिंग बना रहे हो क्या? डाइसैक्रिक में दो ग्लूकोज जुड़ नहीं सकते क्या? जुड़ते हैं, डायमर बनता है वो डाइसाइक्लिक. डाइसैक्रिक डाइसैकराइड, अच्छा वो यूं बोला डाइसैकराइड. हाँ होता है ना, सुक्रोज है ना. वो यही है। तो बताया तो था डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स होते तो है, वो यही तो है. यही वो जो हाँ. एक्सक्यूज सर, जो ये मार्केट में सैचरीन बेची जाती है सैकराइड, सो उसमें क्या होता है उसमें ग्लूकोज नहीं होता, वो शुगर नहीं है, वो शुगर है. तो मीठी क्यों होती है Our taste buds get confused with it. They get a feeling of sugar. उसमें होता क्या है That's another compound. कोई भी Sulfur compound. कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होता Hydrocarbon है ज़्यादा वो. इनऑर्गेनिक Organic hydrocarbon. Benzene compound. ईथर बेंजीन कंपाउंड Benzene compound. दैट्स हार्मफुल Yeah, cancerous. Cancerous. कैसे Cancerous. लोग यूज करते हैं जब लोगों ने बी बनाया था तब पढ़ना पता था, तो मीठा मीठा लग रहा था. शुगर फ्री हो गया होता है इसमें Aspartame. शुगर फ्री में क्या होता है Aspartame. वो क्या होता है It's a protein. सर लेकिन जो उसके टैबलेट दूसरे से आप ऐसे डायरेक्ट खाओ तो वो सारे कर ही देते हैं. यूज है Excessive sweet is bitter. सो उसमें सर इज दैट हार्मफुल Yes. शुगर फ्री Yes. क्यों? और डायबिटीज वालों को खिलाते हैं कैंसरस लाते हैं. सर उससे क्या होता है? उससे क्या डायबिटीज वालों से सिर्फ ये पूछा जाता है कि बेटा तुम चीनी ज्यादा खा के मरना चाहोगे या बिना चीनी के मरना चाहोगे? वो कहता है हम मीठा खाना है, चाहे उस मीठे को खा के हम मर जाए. तो फाइन ना, यूज aspartame. उसमें उससे क्या होता है
वही प्रॉब्लम डायबिटीज किसी मतलब उसका कोई किसी वजह से तो नहीं होती सर, वो टेंशन बहुत टेंशन है, स्ट्रेस होती है इंसुलिन का बैलेंस सर, मतलब ऐसे डायबिटीज ज्यादा चीनी खाने से नहीं होती है। इसको डायबिटीज नहीं है। टेंशन से होती है, जेनेटिक होती है। बेटा जो भी चीज बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है अगर तुम उसको खिलाते हो तो कहीं ना कहीं नुकसान देगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो बॉडी के लिए इनर्ट हो। बॉडी में कोई चीज इनर्ट नहीं होती, या तो फायदा करती है या नुकसान करती है। एक्सेस की बात नहीं है, जो चीज बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होती है वो नुकसान करेगी। बहुत कुछ हो जाता है। बेटा हर चीज के बाद साइड रिएक्शंस होते हैं। और एक बात बताओ, जब हम एक्सटर्नल इंसुलिन लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर तो एक रेगुलेशन होता है कि इंसुलिन इज गोइंग टू बी रेगुलेटेड, कि इतनी इंसुलिन बननी चाहिए, अगर ज़्यादा बनने लगती है तो बॉडी प्रोडक्शन रोक देती है। लेकिन जब आप एक्सटर्नल इंसुलिन लेते हो तो वो क्या हर रोज एक मॉनिटर करके डाल दी जाती है? एक फिक्स अमाउंट डाल दिया जाता है, वो स्लाइटली हाई स्लाइटली लोअर तो होगा ही। बेटा इंसुलिन प्रोडक्शन इन द बॉडी हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद योर शुगर इनटेक। मेरे दादाजी बैठे हुए हैं, ही इज 95 years old एंड वो दूध में चीनी नहीं डालते, चीनी में दूध डालते हैं। डायबिटीज है नहीं है सर, लेकिन डायबिटीज वालों को क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन ऑलरेडी कम है, इसलिए चीनी नहीं खाते। चीनी के खाने से इंसुलिन प्रोडक्शन का क्या लिंक है? तो इंसुलिन का इंजेक्शन तो डायबिटीज खा भी ले तो भी असर नहीं, खाने तो भी असर नहीं। चीनी का अमाउंट एक्सेस हो जाएगा बॉडी में, इंसुलिन के प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीनी खाने या ना खाने से डायबिटीज नहीं होती, कुछ नहीं होता। नमक का कोई रिलेशन ही नहीं है चीनी के मेटाबॉलिज्म से। तो सर वो शुगर फ्री जो होते हैं, शुगर फ्री ये सब चीजें होती हैं, उनमें क्या होता है सर? उसमें शुगर नहीं होती, उसमें स्वीटनर्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स व्हिच गिव अस अ सेंसेशन ऑफ स्वीटनेस। दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत सारे देखो अलग अलग, जैसे कह रहे हैं कि जब किसी को तसल्ली से डराना होता है तो लास्ट रिजॉर्ट ही कैंसर हो जाएगा। पता नहीं कितना कैंसर होता है, सभी यही कहते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है? हमें अगर कोई बीमारी होनी होती है ना तो वो इन चीजों से नहीं होती। चीनी खाने से बीमारी हो गई नहीं होती। हाँ, चीनी खाने से आप मोटे हो सकते हो, डायबिटीज नहीं हो सकती। आर्टरीज क्लॉग हो सकती है, वो अलग चीज है। डायबिटीज इज डिफरेंट। आई एम नॉट सेइंग कि चीनी बहुत खानी चाहिए, आई एम सिंपली सेइंग कि चीनी खाने से डायबिटीज नहीं हो सकती, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए। इज इट ओके? ठीक है? एंड माय एंटायर फैमिली इज अ प्रूफ ऑफ इट। हमारे यहाँ तो चीनी का क्या है, चीनी जितनी शायद नमक लोगों के घर में कोई और चीज नहीं लगती होगी, हमारे घर में उतनी चीनी लग जाती है। तो प्लीज ऐसे मत बोलो मैं बहुत चीनी खाता हूँ, मेरे दादाजी बहुत चीनी खाते हैं, मेरा बेटा भी बहुत चीनी खाता है, मेरे पिताजी भी बहुत चीनी खाते हैं, सब खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरे खानदान में किसी को डायबिटीज का डी भी नहीं है, सब सही है। Okay, now, ये तो डायबिटीज की बकवास हो गई। Now we have just talked about the cyclic structure of the glucose. Now when we talk about the cyclic structure of the glucose, we just found that this particular carbon initially was not optically active, this was not chiral, but the moment we have the cyclic structure, this becomes chiral. And I believe you have just got an idea about what it appears to be. This particular carbon, which is not chiral in the open chain structure, but becomes chiral the moment the ring is formed, is called anomeric carbon. So this is anomeric carbon. देखिए डेफिनेशन, the carbon
carbon which is non-chiral, the carbon which is non-chiral in the open chain structure but becomes chiral when ring is formed. Is known as anomeric carbon. Is known as anomeric carbon. ठीक है, अब अगली डेफिनेशन लिखिए. The compounds which differ from each other, in the configuration at anomeric carbon only. At anomeric carbon only are called anomers. So alpha and beta glucose are anomers. How important that? These two compounds, they differ from each other in their physical properties as well. Okay? Obviously, they are going to have different optical rotations. They have different melting points, and they even have different solubilities. Okay? They have different solubilities even. So, when we talk about the different conditions, we would find different amount of these isomers. Let us say, अगर मान लीजिए हम solid glucose की बात करते हैं, crystalline glucose की बात करते हैं, we would end up with almost pure alpha glucose. When we talk about the solution, this alpha glucose, as you can understand, in water, this ring has a capacity to break apart to get the open chain structure. The open chain structure can again form the ring. So you may say, सर एक्सटेंशन चाहिए. मेरे पास नहीं है. सर के पास तो है. लूज है काम नहीं करता. स्टाफ रूम में जा, दो व्हाइट वाले एक्सटेंशन बोर्ड्स पड़े हैं. बोलिए. सर सारे एल्डोज के अल्फा बीटा सारे ग्लूकोज मैनोजिन बन सकते हैं, लेकिन हम ग्लूकोज की ज्यादा बात करते हैं. कीटोज के कीटोज के भी बन सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा इनकी बात करते हैं. ठीक है ना? सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज एनोमर्स. अब एक बात का ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए मैंने अल्फा ग्लूकोज को पानी में डिसॉल्व किया है, then in that case there is a possibility that this alpha glucose might get hydrolyzed. हाइड्रोलाइज होकर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लेता है. अब प्रॉब्लम ये है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर वापस रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है. ठीक है? अब जब ये रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा तो जैसे ये बना, अब इसके अंदर कोई ऐसा कुछ रह नहीं गया कि ये अल्फा ही बनाएगा. It can form the beta as well. तो होता ये है कि the moment we put any of the glucose, whether be alpha glucose or the beta glucose in water, it forms the open chain structure which again forms the ring structure, so that alpha and beta glucose come in an equilibrium through the open chain structure. ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन होता है उसमें 99% रिंग स्ट्रक्चर है और 1% ओपन चेन स्ट्रक्चर. ठीक है? क्लियर? 99% is the ring structure, 1% is the open chain structure. क्योंकि अल्फा और बीटा की एक रिलेटिव स्टेबिलिटी है. सॉल्यूशन के अंदर बीटा की स्टेबिलिटी अल्फा से ज्यादा है और सॉलिड स्टेट में, क्रिस्टलाइन स्टेट में अल्फा की स्टेबिलिटी ज्यादा है. ऑप्टिकल रोटेशन मतलब ये मतलब वो है मतलब ग्लूकोन ये ऑप्टिकल रोटेशन पानी इसका चेंज हो जाएगा.
जब हम लोग ग्लूकोज की बात करते हैं वहाँ पे मतलब सर तो अल्फा और बीटा में कोई फर्क नहीं as far as the glucose for us is concerned. सर अगर ग्लूकोन नहीं खाएंगे तो मतलब काम नहीं करेगा क्या खाने से क्या खाने से ग्लूकोन खा लो प्रॉब्लम इज मोर इफेक्टिव दैट और पानी में एक ही बात है हार्डली मेक्स अ डिफरेंस हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद सॉल्यूशन में तो आना ही है और अल्फा और बीटा ग्लूकोज में ऐसा कोई फर्क नहीं बिकॉज दे आर इंटरचेंजेबल ठीक है ऑप्टिकली अलग-अलग बॉडी पार्ट्स अलग-अलग बढ़ता है उतना स्टेबल नहीं होता सर उसी वजह से सारे छोड़ेंगे ना बेटा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सर इनसे बॉडी चेंज करने से अलग-अलग बॉडी पार्ट्स को नहीं अल्टीमेटली ग्लूकोज इज ब्रोकन अपार्ट सर जब कोई बीमार था तो हम कहते उसको ये वाला वो वाला ये वाला वो वाले में कोई फर्क नहीं है ग्लूकोज इज ग्लूकोज ठीक है वो अलग-अलग ट्रेड नेम से देते हैं ग्लूकॉन डी देन जो उसको ड्रिप लगाते हैं उसके ऊपर डेक्सट्रोज लिखा होता है ठीक है कुछ दोनों सेम है तो मतलब अल्फा बीटा में कोई डिफरेंस नहीं है as far as we are concerned दोनों में डिफरेंस है जैसे कि बॉडी चेंज करते हैं देख अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे दोनों में डिफरेंस है अगर हम इसकी ऑप्टिकल रोटेशन की बात करेंगे दोनों में डिफरेंस है बट एज फार एज आवर बॉडी इज कंसर्न उसके लिए बहुत आसान है अल्फा को बीटा में बीटा को अल्फा में कन्वर्ट करना तो इस वजह से बॉडी के लिए अल्फा और बीटा में कोई डिफरेंस नहीं है सॉल्यूशन में डालोगे तो आपको एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर मिल जाएगा ग्लूकोज का वो अपने आप ही सेट हो जाता है ठीक है तो अल्फा की ऑप्टिकल रोटेशन इज 111 डिग्रीज टू द राइट बीटा की इज 19 डिग्रीज टू द राइट ठीक है अल्फा और बीटा का जो मिक्सचर बनता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर उसका 57 डिग्रीज टू द राइट है एवरेज भी नहीं है दोनों का रेशियो इज नॉट एग्जैक्ट हाफ हाफ नहीं है बीटा इज मोर देन अल्फा इन द सॉल्यूशन तो 57 डिग्रीज है तो ग्लूकोज का जो बीटा लेयर चाहे अल्फा लेयर उसको पानी में मिलाएगा थोड़ी देर के बाद उसकी ऑप्टिकल रोटेशन 57 डिग्रीज हो जाएगी दैट्स एन इक्विलिब्रियम रोटेशन इज इट ओके क्लियर अपना भी बोला था कि बीटा जो है ज़्यादा स्टेबल है अल्फा से इन सॉल्यूशन एंड यू कैन सी दैट जो ऑप्टिकल रोटेशन हां ऑप्टिकल रोटेशन और स्टेबिलिटी के क्या कोई लिंक नहीं है देन ऑप्टिकल रोटेशन हमें ये बताता है कि अल्फा ज्यादा है या बीटा ज्यादा है उससे हम ये आइडिया लगाते हैं कि बीटा ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो ज्यादा है ऑप्टिकल रोटेशन हैज एब्सोल्युटली नथिंग टू टेल अबाउट द स्टेबिलिटी डिफरेंस बस वो सिर्फ ये बताता है कितना क्या है जब हमें पता चल जाता है ये ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है ऑप्टिकल रोटेशन इज अ वे ऑफ मेजरमेंट बोला ना अभी नहीं फर्क पड़ता इज इट ओके क्लियर ठीक है so that's what we have talked about the alpha and the beta now as I have just told you if the solution is made of alpha or beta they will always achieve an equilibrium mixture due to the conversion of one anomer to the other anomer through an open chain structure ठीक है is it okay write the definition the interconversion of the anomers through an open chain structure to give an equilibrium mixture is known as mutarotation. Mutarotation. याद रख लोगे इस टर्म को? जब ये कंबाइन हो रही है Now, having talked about this,
there are certain other changes of mode. अब एक काम करते हैं, अब हम बात करते हैं एक और फैक्टर की जिसे हम बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज पता है? ना सुक्रोज चीनी सुना नहीं है, खाया भी होगा। Sucrose is a dimer. It's a disaccharide consisting of one glucose and one fructose. ठीक है? Glucose और fructose join करके sucrose बनाते हैं। Sucrose के अंदर it is alpha glucose and fructose. Fructose has a -90 optical rotation. That is, it's a levo rotatory, left rotating. Alpha glucose is +111. So, alpha glucose along with fructose will give a compound which is going to be dextrorotatory. It is going to be rotating towards right. क्योंकि alpha glucose का जो प्लस रोटेशन है वो fructose के माइनस रोटेशन से ज्यादा है। 11 degrees. ठीक है? 11 degrees right. 11 के 21 हो गया। ठीक है? Is it okay? But if we hydrolyze sugar, then we will be ending up with a mixture of equimolar mixture of, जैसे हमारे पास है sucrose. We add water to it. That is hydrolyze. ठीक है? We get glucose and we get fructose. Now this glucose will be a mixture of alpha and beta. That will be an equilibrium mixture of alpha and beta. Now this equilibrium mixture of alpha and beta has an optical rotation of +57. मतलब सर इसका हाँ? रोटेशन +57। अभी तो बोला बीटा रोटेशन था। अल्फा का +111 है। सर मतलब क्या होता है इसका? ऑप्टिकल रोटेशन नहीं पता क्या होता है? सर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव वाला मतलब पता है? ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब पता है? ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है ये पता है? अल्फा ग्लूकोज भी ऑप्टिकली एक्टिव है पता है? तो एक की ऑप्टिकल रोटेशन कुछ होगी, तो दोनों का अगर मिक्सचर होगा तो उसकी भी कोई ऑप्टिकल रोटेशन होगी, तो उसकी ऑप्टिकल रोटेशन 57 डिग्रीज है। तो बताना क्या था? सर तो अब सर हाँ। कल रोटेशन निकालते टाइम डायरेक्ट अलजेब्रिक सम कर देंगे 111 -90 बट हाँ कंसंट्रेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। 1 ठीक है ना? अगर हम इसकी बात करते हैं, now this is an equimolar mixture of glucose and fructose, and glucose itself is an equimolar mixture of alpha and beta glucose. Equimolar नहीं, but a mixture of alpha and beta. ठीक है? इसकी ऑप्टिकल रोटेशन 57 है और इसकी -90। और अब ये हुआ कि फ्रक्टोज की लीवर रोटेशन becomes greater than the dextro rotation of glucose. Is it okay? So this mixture of glucose and fructose, the equimolar mixture of glucose and fructose is levorotatory. ठीक है? जैसे ग्लूकोज अल्फा बीटा ग्लूकोज फ्रक्टोज नहीं होता, होता नहीं, नहीं है उसका 5 मेंबर रिंग है। किसने कहा रिंग के 5 मेंबर रिंग हार्मफुल किसने बताया आपको? एल्डोज और कीटोज बनता है। एल्डोज और कीटोज जो हार्मफुल है किसने बताया आपको? अपनी मर्जी से हार्मफुल हो गया। Is it okay? And that is why there is a change of optical rotation from dextrorotatory to levorotatory. ठीक है? Clear? Definition लिखिए। The change in optical rotation, the change in optical rotation of sucrose, the change in optical rotation of sucrose from dextro to levo, from dextro to levo due to its hydrolysis, due to its hydrolysis
into an equimolar mixture of glucose and fructose. Into an equimolar mixture of glucose and fructose is known as inversion of cane sugar. Inversion of cane sugar. This is called inversion. So there's a cane sugar. Cane sugar, sucrose. Sucrose is cane sugar. Jaggery के बोल. Because of its demands. Lengthy खोल दी उसकी fructose के लिए. Is that okay? हाँ. जो गन्ना जैसे सूख जा रहा है जैसे सरस पड़े आ रहे हैं उनका यूज होता होगा हाँ. किन चीज़ों में भट्टी को जलाने के लिए. बस हाँ, उसको जला देते हैं. क्यों जलाने में और किस में यूज करेंगे? खाद बनाने में यूज कर सकते हैं, भूसे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. और क्या इस्तेमाल करोगे? दैट इज बायोमास. उसको हिंदी इंग्लिश में बगैसे बोलते हैं. बगासे. हिंदी में शायद उसको बगासी बोलते हैं, बगैस. We have certain things, technical terms हैं, molasses, bagasse, and jaggery, sugar. Is it clear? सब ऋषि ठीक है? भाई साहब इधर ठीक है? So that's what we have as inversion of cane sugar. मीटर रोटेशन CHO का जो रिएक्शन होता है. Meter rotation CHO का reaction alpha और beta glucose का interconversion है through the open chain structure. Hydrolysis of cane sugar is called inversion. ठीक है? Anomers are the compounds which differ from each other in the configuration of anomeric carbon. एरोबिक कार्बन वो जिसे जो पहले ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था, बाद में बन गया. क्लियर? ठीक है? बेटा मैं उतने डिटेल में जाने वाला नहीं हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है. ठीक है? हाँ, मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि when we talk about these monomers, there is a possibility of 5-membered rings and 6-membered rings that be formed. ठीक है? Both are cyclic ethers. Now we are going to talk about two cyclic ethers. One cyclic ether is called, क्या नाम है इसका? इसका तो क्या नाम तुम्हें पता हो ही नहीं सकता. So when we get a 5-membered ring, we call it a Furanose ring. Whereas 6-membered ring is called a Pyranose ring. So this is a glucopyranose ring. ठीक है? फ्रक्टोफ्यूरानोस रिंग होती है जब हम सुक्रोज की बात करते हैं. ग्लूकोपायरानोस, फ्रक्टोफ्यूरानोस. The 5-membered cyclic ether ring in the carbohydrate is termed as the furanose ring. 6-membered ring is termed as the pyranose ring. Is that clear? ठीक है? कोई कंफ्यूजन? याद कैसे होगा सर? आज तक तुमसे कुछ याद हुआ है? हुआ है कुछ आज तक याद?
फिर इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जैसे दूसरी चीजें भूले हुए ये भी भूल जा। अब तुम्हें ये तो नहीं कह सकते कि जैसे बाकी याद किया वैसे कर लो। सच बोला है मैंने तो। पता नहीं क्यों जिसने याद नहीं करना होता वही पूछता है याद कैसे करें। Okay, so that's what we have talked about, the carbohydrates. Finished. Carbohydrates. सभी चीजें बाकी दोबारा रिवाइज करें सर। कितना टाइम लगा? प्रोटीन हाँ सर वो भी इतने बड़े नहीं सर, जितना टाइम बाकी वो एक बार दोबारा रिवाइज करें। टाइम नहीं अभी बाकी है जितना लास्ट तक और ये क्या चाहता है बच्चे वो पूरे टाइम बायोमोलिक्यूल्स ही करते रहे। क्या कर रहे हैं? प्रोटीन्स Okay, let's talk about the compounds called proteins. Now proteins again are polymers. तो प्रोटीन होता क्या है? हाँ वही बता रहा हूँ। अभी तो बोला proteins are polymers. Poly का मतलब और मर का मतलब मर का मतलब होता है parts. Part. मतलब कैसे हो A सकता है? compound or a substance which contains many similar parts is called a polymer. सपोज वाटर तो बॉटम होता है Meros stands for parts. To be very clear, polymers should not, the proteins should not be called polymers because in them all the parts are not identical. They might be similar in their characteristics, but they are not identical. So polymers, nucleic acids, they should not be called proteins and nucleic acids should not be called polymers. They are better known as macromolecules. बॉडी के लिए सेम हो गया, बाकी डिफरेंस सब different. बॉडी के लिए हाँ, हम starch, cellulose, glycogen इनको हम polymer बोल सकते हैं because in them all the units are identical. They are made up of glucose. ठीक है? और हाँ इतना फर्क बता देता हूँ. Starch और cellulose में सिर्फ एक फर्क है. Starch is a polymer of alpha glucose, whereas cellulose is a polymer of beta glucose. ठीक है? Definition लिखिए. मतलब बॉडी के लिए तो सेम होने भैया जी, definition बॉडी के लिए लिखो. सेम। बहुत डिफरेंट है. cellulose digest नहीं होता. सर आपने तो बताया Polymer. पॉलीमर में पानी मिला के चीज लिखिए डेफिनेशन. हाँ. The ether link between two saccharide molecules. The ether link between two saccharide molecules is known as glycosidic linkage. Is known as glycosidic linkage. Glyco, S-I-D-I-C. G-L-Y-O, G-L-Y-C-O, S-I-D-I-C, glycosidic linkage. ठीक है? क्लियर? तो कोई तुमसे पूछता है कि ग्लूकोज यूनिट्स are joined with each other to form the starch through options are there. The answer is glycosidic linkage, and it's an ether link. Okay. Now let's talk about the proteins. The
The proteins are macromolecules consisting of a series of small molecules called amino acids. Amino acids. The proteins are macromolecules formed by the joining together of alpha amino acids. Alpha amino acids. Now these compounds are called alpha amino acids because they have a general formula CH, COOH. Here there is a group G and this is NH2. Now as you can see, this is the alpha position. We have the amino group attached on the alpha position of a carboxylic acid. That is why they are called alpha amino acids. Is it okay? Okay na? अब बात आती है कि these amino acid molecules, how do they join with each other? But लेकिन join होने से पहले जरा amino acids के बारे में कुछ समझ लें. This group, the simplest group here G could be hydrogen. When this is hydrogen, it's called glycine. So glycine is the simplest amino acid or the simplest alpha amino acid. ठीक है? And incidentally, glycine is the only optically inactive amino acid. Rest of all the G does not stand for glucose, it stands for a group. Could be anything. The simplest one is hydrogen. अल्कोहल लग गया तो कहाँ रहा? Optically active रहेगा. इस कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप डिफरेंट है ना? हाँ तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ना? हाँ, अगर H है तो नहीं होगा ना? तो that's what I said. NH2 होता नहीं है. एक कार्बन पे दो NH2, दो COH स्टेबल नहीं होते. एक ग्लाइसिन का जेंडर है. It's a general formula of alpha amino acid. G पे डिपेंड करता है. G पे कि आप कायरल है या नहीं. जी हाइड्रोजन भी हो सकता है ना? हाँ जी, ठीक है जी. जी हाइड्रोजन भी हो सकता है. जी हाइड्रोजन होगा तो एक कायरल नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और होगा तो एक कायरल हो जाएगा. जब ये हाइड्रोजन होता है तो इस कंपाउंड का नाम है ग्लाइसिन. ठीक है? ग्लाइसिन इज द ओनली अल्फा अमीनो एसिड व्हिच इज नॉट कायरल. स्वामी जी, ठीक है? तो आज से वर्मा जी को इज्जत देने के लिए हम वर्मा सी बोला करेंगे. स्वामी सी नहीं, स्वामी सी. वर्मा जी सी. Now, when we talk about the human body, we require amino acids to prepare proteins. So useful क्या होते हैं सर? मतलब अमीनो एसिड्स काम क्या करते हैं बॉडी में? अमीनो एसिड कोई काम नहीं करते. तो फिर होते क्या हैं? एक बार बता, मकान में ईंटों का क्या काम है? मकान बनाने के लिए. Exactly the same answer is this of this question that you asked me. अमीनो बनाने के लिए. Amino acids are the building blocks of protein. अमीनो एसिड प्रोटीन्स बनाते हैं. ठीक है? अब वर्मा जी, मुझे पता है कि आपने बहुत ही सीरियसली इसको समझा कि अमीनो एसिड प्रोटीन्स बनाते हैं, लेकिन आपको अभी भी समझ में नहीं आया. अरे चल कुंफू पांडा. जब भी ये सीरियसली सोचता है ना, तो मुझे पता होता है कुछ समझ में नहीं आया है. सर अमीनो एसिड से जो प्रोटीन्स बनते हैं जी, तो प्रोटीन से क्या फंक्शन है? तो वही तो नहीं पता.
हाँ मुझे पता था ये सवाल नहीं पता। सर पता है सर पता है क्या पता है? कंटेनर है मतलब सर No, sir, executive है, sir. अच्छा सर इसको? एग्जीक्यूटिव है हाँ प्रोटीन हाँ अच्छा एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जितना काम होता है सर प्रोटीन करता है अरे वाह बिल्कुल सही बता बता काम का क्या होता है? सर मतलब जो काम करते हैं सब प्रोटीन चलो छोड़ो तुम्हें अब क्या डिटेल्स देनी तुम्हें समझ में तो आनी नहीं है रहने दो यार ना here when you talk about these amino acids there are certain amino acids which are essential to prepare proteins but those amino acids cannot be synthesized in the human body those proteins cannot be synthesized in the human body खाना क्यों खाते हैं पीने के लिए दाल क्यों खाते हैं the amino acids which are required for preparation of protein in the body but cannot be synthesized in the body are called essential amino acids मतलब सर जो हम प्रोटीन्स लेते हैं उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स उसमें अमीनो एसिड्स फॉर्मूला क्या होता है अमीनो एसिड फॉर्मूला क्या होता है नमक चावल चीज नहीं चावल देखिए the amino acids which are necessary to synthesize amino acids which are necessary to synthesize the proteins required by the body but cannot be produced in the body are called essential amino acids are called essential amino acids आगे देखिए these amino acids have to be extracted directly from the food. ठीक है अब एक सिंपल सी बात है the people who eat meat the non-vegetarian people they get the proteins from the animal sources. Now animal sources when a person eats meat they are already taking the proteins from an animal. So those proteins are complete proteins. That is, we get all the essential amino acids from the non-vegetarian diet. एक्स्ट्रा भी तो कुछ होता होगा Almost same ही होता है क्योंकि the proteins उनके nature different हो सकते हैं लेकिन उनके constituent similar होते हैं. सब वेजिटेरियंस But when we talk about a vegetarian diet, then in that case no single vegetarian source is capable of giving all the proteins. So you always have to have a mix and match of vegetarian diet. You cannot just keep on eating one thing in vegetarian diet. ठीक है हाँ वो अलग बात है कि जो नॉनवेज लेते हैं वो कहते हैं कि हमने हर रोज चिकन ही चिकन खाना तो फाइन उनके काम चल सकता है कोई कहता है मुझे मीट ही मीट खाना फाइन काम चल सकता है नॉनवेज डाइट कंप्लीट होती है एक ही चीज खाते रहो काम चल जाएगा लेकिन जब हम वेजिटेरियन डाइट की बात बोलते हैं एंड इफ वन पर्सन से मुझे सिर्फ आलू पसंद है तो वो मालन्यूट्रिशन हो जाएगा ठीक है और वो कहता है मुझे एक पर्टिकुलर दाल ही खानी दूसरी दाल नहीं खानी काम नहीं चलेगा
Is it okay? हाँ? बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि किसी प्रोटीन के लिए कोई अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट है, किसी प्रोटीन के लिए कोई अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट है. एनिमल प्रोटीन्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट प्रोटीन्स. ठीक है, प्लांट प्रोटीन बॉडी में जाए चाहे एनिमल प्रोटीन्स जाए, दे हैव टू बी डिसोशिएटेड इनटू अमीनो एसिड्स एंड वी हैव टू गेट ऑल द अमीनो एसिड्स. प्लांट एक पर्टिकुलर प्लांट में सारे अमीनो एसिड नहीं होते, सारे होते. सर डाइटरी सप्लीमेंट खा रहे हैं. डाइटरी सप्लीमेंट कितना खाओगे, वो भी इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है. जितने अमीनो एसिड आपको चाहिए बॉडी उतने एक्सट्रैक्ट कर लेगी. डाइटरी सप्लीमेंट इज जबरदस्ती मूवमेंट घुसना. नो डाइटरी सप्लीमेंट इज आल्सो कंप्लीट. ठीक है.